We want to welcome you to another Sunday service. हम सभी का स्वागत करते हैं. हम प्रार्थना करके कि आप परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस कर रहे हैं. क्यों ना हम why don't we prepare ourselves to worship God and prepare our hearts to tell Him how much we love Him. Can we tell Him that in this season of where we are regarding coronavirus and जो भी यहाँ पे चल रहा है, क्यों ना परमेश्वर से अपनी उनकी पवित्र आत्मा मांग के हम बोलेंगे परमेश्वर से, फिर से वो आग बरसा दे, फिर से तूफान ला दे, तेरी महिमा से, तेरे सामर्थ्य से, फिर से तू अभिषेक कर दे, फिर से वो आग बरसा दे, फिर से तूफान ला दे, तेरी महिमा से, तेरे सामर्थ्य से, फिर से तू अभिषेक कर दे. पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, परमेश्वर से बोलिए, बहने दे उस हवा को, छू ले हर एक दिल को, तेरा दर्शन हमें मिले, करते हैं प्रार्थना तुझको, बहने दे उस हवा को, छू ले हर एक दिल को, तेरा दर्शन हमें मिले, करते हैं प्रार्थना तुझको, तेरी महिमा से, तेरे सामर्थ्य से, फिर से तू अभिषेक कर दे. क्यों ना मिलके बोलेंगे, आ पवित्र आत्मा, आ पवित्र आत्मा, आ पवित्र आत्मा. Jesus, we lift you up in this place. You're all I want, Jesus. We lift you up, Lord. We give you all the glory, Lord. You are worthy, Jesus. मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा दिल था काली, तूने सींचा था खून से ताकि आई हरियाली. मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा दिल था काली, तूने सींचा था खून से ताकि आई हरियाली. क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार. तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया, जय
मुझे प्रेम ने है पाया। मेरा बीत गया, मुझको अजीज मिल गया, सब कुछ हो गया है नया। तो मैं चिल्ला कर गाऊं, बोलिए मिलके, सबको मैं सुनाऊंगा, मुझे प्रेम ने है पाया। ओ मेरा बीत गया, मुझको अजीज मिल गया, सब कुछ हो गया है नया। मुझको यीशु ने किया है देकर जान, प्रभु फिर से जी उठा है। मुझको प्रेम यीशु ने किया है देकर जान, प्रभु फिर से जी उठा है। तो मैं चिल्ला कर गाऊंगा, सबको मैं सुनाऊंगा, मुझे प्रेम ने है पाया। मेरा बीत गया, मुझको अजीज मिल गया, सब कुछ हो गया है नया। इसीलिए तो मैं चिल्ला कर गाऊंगा, सबको मैं सुनाऊंगा, मुझे प्रेम ने है पाया। मेरा बीत गया, मुझको अजीज मिल गया, सब कुछ हो गया है नया। बोलिए, हो गया है नया, हो गया है नया। Tell Jesus, I'm not gonna live by what I see. Yeah, lift it up and say, I'm not gonna live by what I feel. One more time, I'm not gonna live, say, oh, I'm not gonna live by what I see. Oh, I walk by faith, I'm not gonna live by what I feel. Deep down I know that you're here with me. Yeah, I know that you can do anything. Through you I can do anything.
challenge each one of you today. No matter what the circumstance, tell Jesus you're alive. You're so good to me. Oh, believe it in every situation of your life. Say you are good all the time, all the time. You are good, you are good all the time, all the time. You are good. Say you are good all the time, all the time. You are good, yeah, you are good all the time, all the time. You are good. Say people, people from every nation and tongue, from generation to generation, say we worship you. Hallelujah, hallelujah. We worship you for who you are. Whoa, we worship you. Hallelujah, hallelujah. We worship you for who you are, for who you are, for who you are, for who you are, for who you are. You are good. हो तेरी स्तुति हो आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना, महिमा से तेरी तू इस जगह को भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पर कर। हो तेरी स्तुति हो आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना, महिमा से तेरी तू इस जगह को भर, जो भी तू चाहे बोलिए तू यहाँ पर कर। हालेलुया, 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 हाले तेरी आराधना हो, तेरी जय जयकार हो। ओ रे माशंदरे, why don't we worship this King of Kings and Lord of Lords, Jesus? Yeah, we worship you, Lord. We adore you. We lift you up, Lord. Be enthroned in our praises. Be enthroned in our families, Lord. Be enthroned in my life, Lord. That's why we say, shine your light and let the whole world see. We're singing for the glory of the risen King. Do you believe that, church? Say, oh, shine your light and let the whole world sing. We're singing for the glory of the risen King. That's why you my Savior. He can move the mountain. My God is mighty to save. He is mighty to save forever. Author of salvation. He rose and conquered the grave. Jesus conquered the grave. You conquered the grave. Conquer the grave. Jesus, you rose again, Jesus, and you're coming back for me, Lord.
You're coming back for the bride. We are the church, Jesus. Oh, अब तुझे न छोड़ूंगा, अब तुझे न त्यागूंगा, मैं घर लौट आया तेरे प्यार में पिता। अब तुझे न छोड़ूंगा, अब तुझे न त्यागूंगा, मैं घर लौट आया तेरे प्यार में पिता। अब तुझे न छोड़ूंगा, अब तुझे न त्यागूंगा, मैं घर लौट आया तेरे प्यार में पिता। अब तुझे न छोड़ूंगा, अब तुझे न त्यागूंगा, मैं घर लौट आया तेरे प्यार में पिता। परमेश्वर से बोलिए, आया हूँ यीशु तेरे ही पास, जैसा भी हूँ तेरे सामने हूँ। आया हूँ यीशु तेरे ही पास, जैसा भी हूँ तेरे सामने हूँ। तू जांच ले मुझे, तू जान ले मुझे, तू ले ले मुझे अपनी बाहों में। अब जी ना सकूं तेरे बिना, अब रह ना सकूं तेरे बिना, अब जी ना सकूं तेरे बिना, अब रह ना सकूं तेरे बिना। ये जीवन तेरा है, ये जीवन तेरा है, ये जीवन तेरा है, ये जीवन तेरा है। Lord, we give you all the glory. We give you all the praise. You are worthy. You are mighty God. You're bigger than any circumstance that we face, Father. You're bigger than any problem that we are afflicted by, Father. And we thank you for your loving kindness upon us. We thank you, Lord, that we can join in fellowship. We thank you, Lord, कि हम संगति और प्रेम में online हम जुड़ सकते हैं. We thank you, Lord, for everything and everyone who is listening to the voice of my singing and the instruments that we're playing. All glory and all honor and praise belongs to you, Jesus. Amen. Good morning and welcome to Capital Christian Center Sunday service live streaming. आपका चर्च कैपिटल क्रिश्चियन सेंटर wants to make sure कि आप इस तरीके से Facebook के द्वारा या YouTube के द्वारा सहभागिता फेलोशिप करते हैं. उसी के लिए हमने नेक्स्ट वीक के सारे सेल ग्रुप कैंसिल कर दिए हैं. अब आप सोच रहे होंगे कि स्नेहा कह रही है फेलोशिप करेंगे पर सेल ग्रुप कैंसिल कर दिए. Don't worry. There is a new thing we have started from this week onwards, which is पास्टर्स टॉक. यानी कि आपके पास्टर्स कैपिटल क्रिश्चियन सेंटर के जो हमारे पास्टर्स हैं, पास्टर रंजीत इब्राहिम, पास्टर जेम्स विल्सन, पास्टर लिजन राजन और पास्टर फैनियल सिंह, ये आपके चारों पास्टर्स थ्रू आउट द वीक हफ्ते में एक बार फेसबुक लाइव पे जाएंगे और आपसे बातचीत करेंगे और हर हफ्ते एक स्पेशल टॉपिक होगा. Along with that, on Thursday, our ladies' prayer meeting will stay intact at its right time, 10 a.m. All the women who have been missing out on attending this ladies' prayer meeting, we want to assure you कि ये प्रार्थना सभा अब चलती रहेगी सिस्टर जॉयस की लीडरशिप में फेसबुक लाइव पे. Do not forget to join in and do not forget to intercede for your church, your city, nation, your families and all the other important topics. Do you also remember that we had started a new campaign called Love Look, under which we want to show to everybody that our faith
is just not faith of words but faith of action. यानी कि हमारा विश्वास सिर्फ बोलने का विश्वास नहीं है पर करने का विश्वास भी है। उसी के अंडर हमने ऐसी बहुत सारे हमारे कलीसिया के परिवार हैं जिनकी मदद करी और उससे उस मदद के द्वारा हम बहुत गर्वित हैं कि हम परमेश्वर के यीशु मसीह के हाथ और पैर बन सके उनके जीवनों में। और उसी के साथ आप इस चीज को प्रार्थना में रखें कि आने वाले दिनों में कैपिटल क्रिश्चियन सेंटर 300 से भी ज्यादा फैमिली को रोज फीडिंग कराना चाहता है, यानी कि उनको खाना खिलाना चाहता है। हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का कि परमेश्वर ने हमें इतना दिया, हमारी कलीसिया को इतना आशीषित किया कि हम आगे बढ़कर इस मुश्किल के समय में हमारी कम्युनिटी को इतना आशीषित कर सकें। और उसी के साथ में आप ये मत भूलिएगा कि आपको हम अपने घर में बैठे हैं, even though we are inside our homes, we are locked down, even though we are not able to come to church physically, do not forget that God still expects your first fruits out of you. यानी कि आपका जो पहला एक दशवांश है परमेश्वर आपसे अभी भी एक्सपेक्ट करता है, क्योंकि परमेश्वर आपको आशीषित करना चाहता है। So if you have not given your tithe till now, अगर आपने अपना दशवांश अभी तक नहीं दिया है अप्रैल महीने का, I want you to note down the information that is showing on the screen right now. Praise the Lord, church. I know times are hard and challenging, but God is in control of everything. If you would like to pay your tithes and offerings, we have two ways to do that. One is through Google Pay, and the number is on the screen, 9899470260. Or if you would like to transfer to the bank directly, you can see the number which is given on the screens. Whatever you do through Google Pay, we will transfer it from our Google Pay account to the New India Church of God North account and send you a receipt on WhatsApp. We are so thankful for your support. Take care, be safe, stay home. God bless you. उसी के साथ साथ मैं आपको एक और बात प्रोत्साहित करना चाहती हूँ कि अपने दिल को बिल्कुल भी हल्का मत होने दीजिए, अपने मन में दुख मत आने दीजिए। Do not let anxiety or any kind of sadness take place in your heart, because we will look forward to the days when all of us will meet together in the house of our Father and worship the Lord together. Hallelujah. परमेश्वर की महिमा हो। Well, we are back to another Sunday online worship service. और वापस से हम एक और शुक्रवार के लिए हम इस अपनी ऑनलाइन सर्विस के द्वारा आए हैं। Amen. आमेन। We had a wonderful time of worship with Pastor Ranjit. और पास्टर रंजीत के साथ हमने बहुत अच्छी आराधना का मजा लिया। And I pray that you have been blessed through the worship service. और मैं विश्वास करता हूँ कि आप उस आराधना के द्वारा आशीषित हुए हैं। Amen. आमेन। And we are getting used to this. और हम इसके आदी होते जा रहे हैं। This is the fourth Sunday we are having a worship service online. और ये चौथा रविवार है जिसमें हम ऑनलाइन सर्विस के द्वारा एक दूसरे से मिलते जा रहे हैं। When we started, we did not know how this is going to be. जब हमने शुरुआत की थी इसकी हमें पता नहीं था कि इसका आखिरी जो अंत होगा वो किस तरह से होगा। Now we are feeling so good. और अब हम इसका मजा ले रहे हैं। But the only problem I am having is I don't want you to get too much used to this service. लेकिन सिर्फ मेरे साथ ये परेशानी है कि मैं नहीं चाहता कि आप इसके आदी हो जाएं। Because we wanted to start back and I want every one of you to come back to the church. क्योंकि मैं चाहता हूं कि हम जैसे पहले आराधना में आते थे हम उसी तरीके से हो जाएं। Amen. आमीन। And also we have been encouraging you to give online, and some of you have been giving, but many of you were not giving. So I want to encourage every one of you, just give online, just like you will be putting your money in the offering bag in the church. और जैसे मैं आप सबको प्रोत्साहित करते आ रहा हूं कि आप अपनी भेंटों को चढ़ाइए, और जो लोग नहीं दे पा रहे हैं किसी कारणवश वो दीजिए, और जो दे रहे हैं मैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। But I do pray for every one of you, because I know some of you maybe you don't know how to give, but I consider you as a giver. And I am going to pray for a blessing upon our offering. और मुझे पता है कि आप बहुत से लोग देना चाहते हैं, लेकिन किसी कारण के वजह से आपको नहीं पता है कैसे देना, लेकिन मैं फिर भी आपके लिए प्रार्थना करता हूं कि परमेश्वर आपको आशीषित करे। Let us pray. आइए हम प्रार्थना करें। Let us thank the Lord for giving us
an opportunity to give to God. आइए हम परमेश्वर को धन्यवाद दें कि उसने हमें ऐसा सौभाग्य दिया भेंट चढ़ाने के लिए। Heavenly Father, प्रिय परमेश्वर स्वर्ग के पिता, we thank you, Lord, for this wonderful day. हम इस सुंदर दिन के लिए आपको धन्यवाद देना चाहते हैं Thank you, Lord, for giving us the opportunity to give to God. और इस सौभाग्य के लिए हम धन्यवाद देते हैं जिसमें हम आपको दे पा रहे हैं। Lord, I pray that you'll bless this offering. और परमेश्वर मैं धन्यवाद देता हूं कि आप इस भेंट को धन्यवाद दें Lord, I bless this tithe. और मैं इस ये जो समय को मैं आशीषित करता हूं। Lord, this will be enable us to pay all our bills and all our needs and expenses. परमेश्वर होने दे कि ये जो भेंट है हम इसके द्वारा हमारी सारे कार्यों को समय से कर पाएं And of course, you will reward everyone mightily. और हम विश्वास करते हैं कि आप सबको आशीषित देंगे उनके देने के आधार पे In Jesus' name. यीशु मसीह के नाम से Amen. आमीन Hallelujah. हालेलुया। And I want to share with you a message for you to keep yourself for this coming week. और मैं चाहूंगा कि आने वाले सप्ताह में आप इस वचन के आधार पे अपने जीवन को जीने पाए। Amen. God has been good to all of us. और हम मानते हैं कि परमेश्वर हमारे लिए बहुत ही अच्छा रहा है Our country is fighting with the और coronavirus. हमारा जो देश है इस कोरोना वायरस से लड़ रहा है Not only just our nation, the whole world is fighting. और हमारे भारत देश ही नहीं बल्कि हमारा पूरा समस्त जो संसार है इससे लड़ रहा है। The biggest problem that the country is having is United States of America. और हम जो ये महसूस करते हैं कि ये जो परेशानी है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका को है। More than 6 lakhs of people have been infected with this virus. और 6 लाख से ज्यादा तादाद में लोग इससे संक्रमित हो चुके The हैं। largest number of people, almost 27,000 people have died through this virus. और ऐसा माना जाता है कि कम से कम 27,000 लोग मर चुके हैं इसके वजह से। We should pray for that country. हमें उस देश के लिए प्रार्थना करने की जरूरत We है। should pray for every nation. हमें हर देश के लिए प्रार्थना करने की जरूरत है। And of course, we should pray for our own country. और ये बिल्कुल सही है कि हमें अपने देश के लिए भी प्रार्थना करने की जरूरत है। We are in a lockdown till the और- 3rd of May. और हम 3 मई तक हम अपने घरों में बंद हो चुके हैं। But you have to understand, we have done only little bit of testing among the people. और हमारा ये मानना है और हम ये मानते हैं कि हमने लोगों के बीच में जो ये उदाहरण के रूप में ये जो लॉकडाउन करा है वो सिर्फ हमने थोड़ी तादाद में किया है। We have done the testing for about 2 lakhs of people. हमने सिर्फ ज्यादा से ज्यादा 2 लाख लोगों के बीच में ये जो हमने टेस्टिंग को अपनाया है। And out of that, we are having, I think, about more than 10,000 people have been positive. to और इस जो योजना में इसको टेस्ट करने की योजना में बस पता चला है कि ज्यादा से ज्यादा 10,000 लोग हैं जो इसके वजह से और पीड़ित हो चुके हैं या मर गए हैं। And about 400 people have died. और 400 लोग हैं वो मर चुके हैं। But now our biggest concern is we don't know how many people are affected with the virus outside there. लेकिन अब हमारी जो बहुत बड़ी चिंता की बात वो है कि इसके ऊपर या इससे बाहर और कितने लोग हैं जिनके बारे में हमें पता नहीं है। Because people are not being tested. क्योंकि उन लोगों का टेस्ट नहीं करवाया जा रहा है। So we should still pray that there is not many cases out there, but the Lord is bringing this country out of this big problem. और हम विश्वास करते हैं कि जिनका नहीं हुआ है टेस्ट परमेश्वर उन सबको बचा के रखे और जितने भी लोग हैं इससे उन सबको भी परमेश्वर निकाल करके लेके आए। That is our prayer. ये हमारी प्रार्थना है। Every one of us should pray the divine protection upon India. हम सबको प्रार्थना करने की जरूरत है कि एक दैविक सुरक्षा इस हमारे भारत पे हमेशा के लिए बनी रहे। Amen. आमीन। Also, I want you to know that we are helping with the poor people. We are sending food packets and groceries, kiranas for several people in this city. और मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि हम हमारी टीम के द्वारा हम हमारे जो इलाके में हैं और जैसे दिल्ली में हैं हम अपनी तरफ से सहायता कर रहे हैं लोगों को किराने की चीजों को दे करके और खाने पीने के पदार्थों के द्वारा। We are trying to do our best to help the poor at this time. इस समय में जितना भी हमसे हो सकता है हम अच्छे से कर रहे हैं उन गरीब लोगों के लिए जो बिल्कुल जो इस आशा में है कि उनको कोई मदद के लिए मिल जाए। Please pray for the poor people. और आप कृपया करके उन गरीब लोगों के लिए प्रार्थना कीजिए। Pray for the government. और हमारी जो सरकार है उसके लिए प्रार्थना कीजिए। Pray for the prime minister. हमारे प्रधानमंत्री के लिए प्रार्थना Pray कीजिए। for all the chief ministers of the state. और सारे जो पूरे प्रदेशों के जो चीफ मिनिस्टर हैं उनके लिए भी दुआ कीजिए। Please pray for the police officers. और जो पुलिस
ऑफिसर है उनके लिए भी दुआ कीजिए, Pray for the doctors and nurses, और डॉक्टर और जो नर्सेस कार्यरत हैं हॉस्पिटल में उनके लिए भी दुआ कीजिए, because they need our valuable prayers. क्योंकि उन्हें हमारी प्रार्थनाओं की सख्त जरूरत है। And God will bless us. परमेश्वर हमें आशीष देगा। Amen. आमीन। Are you ready to hear from God's word? क्या आप परमेश्वर के वचन में से सुनने के लिए तैयार हैं? Amen. आमीन। Hallelujah. हालेलुया। Okay, turn with me to the First Samuel, book of First Samuel. और आप मेरे साथ निकालिए पहले शामुएल की किताब, We're going to look at from chapter 30, और हम 30वें अध्याय से देखने वाले हैं। and we'll read verse 1 and 2. हम पहली आयत और दूसरी आयत में से पढ़ेंगे, I want Simon to read that in Hindi, please. और मैं आप सबके लिए पढ़ना चाहूंगा पहला शामुएल उसका 30वां अध्याय और उसकी पहली और दूसरी आयत इस प्रकार कहती है। तीसरे दिन जब दाऊद अपने जनों समेत सिकलाग पहुंचा, तब उन्होंने क्या देखा कि अमालेकिया ने दक्षिण देश और सिकलाग पर चढ़ाई की और सिकलाग को मार के फूंक दिया, और उसमें की स्त्री आदि छोटे बड़े जितने थे सबको बंदी बनाकर ले गए। उन्होंने किसी को मार तो नहीं डाला, परंतु सबों को लेकर अपना मार्ग लिया। Amen. आमीन। I'm going to take this story today. I want to preach a message that will encourage us at this time. और मैं इस कहानी को और वचन को ले करके मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि कैसे ऐसी परेशानियों से जब हम जूझते हैं तो हम कैसे उसमें उत्साहित बन के रह सकते हैं। David was running away to save his life from King Saul. और जो दाऊद राजा है वो साउल अपने ससुर से अपनी जिंदगी को बचाने के लिए भाग रहा है, And he joined in the land of the Philistines. और वो फिलिस्तियों के नगर में जाकर के जुड़ जाता है या बस जाता And है। there is a prince in the land of Philistines. His name is Achish, and he gave David and his people to live in a place called Siklag. और अकीश करके जो राजा है वो इनको जो दाऊद और उसके जो संग के जो लोग हैं उनको ये सिकलाग जगह में एक थोड़ी सी उनके लिए बंदोबस्त कर देता है कि वो वहां पे जाकर के रहने पाए। David had 600 men with him, और जो दाऊद है उसके साथ 600 लोग आए हुए हैं, and their wives and their families. और उनके पति पत्नी और उनके बच्चे। So there they were living in Siklag, and David was working closely with Achish. और सिकलाग में रहते हुए जो दाऊद है वो बहुत करीबी रूप से उस अकीश राजा के साथ कार्यरत है। Amen. आमीन। So this was the time that the Philistines went to fight against the people of Israel. और ये समय ऐसा होता है जब फिलिस्तियों की सेना हमारे इस्राएल के लोगों के विरुद्ध चढ़ाई करने के लिए आती है, They were going to fight against King Saul. और वो साउल राजा है उसके विरुद्ध में चढ़ाई करने के लिए आ रहे हैं। So David and his men also went for the battle. और जो दाऊद है और उसकी सेना वो भी चढ़ाई करने के लिए जाते हैं। And at that time, that some of the princes of the Philistines, they did not believe David. और उस समय ऐसा होता है कि दाऊद के साथ कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो उसके साथ विश्वास नहीं करते हैं कि हमें ऐसा चढ़ाई करने के लिए Because जाना they चाहिए। all knew the ability, the warfare of David. और क्योंकि उन्हें ये पता था कि दाऊद कितना सामर्थ्यशाली है या नहीं है वो उस बारे में जानते थे। So they said, in the middle of the war, if David turns against us, that will be a big problem. और वो इस प्रकार कहने लगे अगर युद्ध के दौरान अगर जो दाऊद है वो हमारे विरोधी हो गया तो वो हमारे लिए बहुत बड़ी समस्या हो सकती है। So they insist that the David and his men should go back to their homes. और वो कहते हैं इस तरह से बोलते हैं कि नहीं नहीं हमें दाऊद और उसके लोगों की जरूरत नहीं है, उन्हें वापस जाना चाहिए। So that's when our story begins. और वहां पे हमारी कहानी जो आज हमने पढ़ी है वो शुरू होती है। David and his men, 600 men, were coming back to Siklag. और जो दाऊद है और उसके साथ जो 600 सैनिक है वो वापस सिकलाग शहर में आते हैं। It takes about 3 days for them to get there. और 3 दिन लगता है उनको वापस सिकलाग में पहुंचने के लिए। And within that time, और उसी समय दौरान the Amalekites came and attacked Siklag. और उसी समय जो अमलकाइत के जो लोग हैं वो सिकलाग पे धावा बोल देते They हैं। didn't have any problem उनको कोई परेशानी नहीं because थी there was no men there, क्योंकि वहां पे कोई आदमी नहीं था, only the women and children. वहां पे सिर्फ औरत और जो बच्चे मौजूद So थे। they took all the women and children with them, और उसके साथ वो क्या करते हैं पूरी औरतों को और बच्चों को अपने साथ ले जा लेते and they हैं burned the whole town. और वो पूरे नगर को जलाकर राख कर देते Every हैं। house was burned down. सारा घर जल के राख हो जाता है। As David and his people were coming from a distance, they could see
the smoke rising up to the और heavens. जब दाऊद और उसकी सेना जब वहां से आती है उस सिकलांग जगह पे, वो दूर से देख सकते हैं कि वहां पे आग उठ रही है या धुआं उठ रहा है, सब कुछ खाक होने के And बाद। now they are not walking anymore, they are running towards. अब वो दौड़ नहीं रहे, वो चल नहीं रहे, बल्कि अब दौड़ रहे जोर से अपने नगर की तरफ। They were hoping that it was not Ziklag from where the smoke is rising और up. वो देख रहे हैं और ये आशा में है कि जहां से वो देख रहे हैं वो जला नहीं है, लेकिन सिर्फ धुआं निकल रहा है। But sadly when they got there, it was Ziklag. लेकिन दुख की बात है कि जब वो वहां पे पहुंचते तो उन्हें वही नगर सिकलांग जो उनको नजर आता है जला हुआ है। Everybody was running around to go to his house and find what happened to their family. और सब लोग अपने घर की तरफ दौड़ रहे हैं, छानबीन कर रहे हैं कि हमारा परिवार बचा है या जल गया है या क्या है। There's nothing there. वहां पे कुछ नहीं है, All the houses were burned down. सब कुछ जल के राख हो गया है Not a soul was there. और एक आत्मा भी नहीं बची थी। What are you going to do? अब क्या करेंगे? The wives are gone. और जो औरतें हैं जा चुकी हैं, The children are gone. बच्चे जा चुके हैं। So that what you can do normally will be, that's what they did. They sat there and they started crying. और एक सामान्य मनुष्य क्या करेगा? उन्होंने वही किया, वहां पर बैठ गए और रोने लगे इन सारी परिस्थितियों को देख करके। The Bible says that they cried until there was no more strength left for crying. और वचन कहता है कि वो इतनी हद तक रोए कि जब तक वो रुके नहीं, जब तक उनके हलक में आंसू या आंसू की एक बूंद नहीं रुकी। You will do the same. और आप भी वैसे ही करेंगे, I will do the same. मैं भी वैसे ही करूंगा। If I lost my family, if I don't know what happened to them, I will sit and cry. अगर मेरे परिवार भी खो जाएगा या कहीं भटक जाएंगे, नहीं मिलेंगे, तो मैं भी ऐसे ही रोऊंगा बैठ करके। But now the question is this. लेकिन अब प्रश्न ये है, How long I'm going to sit there and cry? मैं कितने देर तक वहां पर बैठ करके रोता रहूंगा। That is what I want to build my story, my message for you today. और उसी बात पे आधारित करते हुए मैं अपनी जो प्रचार को मैं बनाना चाहता हूं और आपके सामने पेश करना चाहता Are you हूं। going to sit there and cry for the rest of your life? क्या आप वहां पे बैठते हुए अपने जीवन भर रोते रहेंगे? Will your cry make any difference? क्या आपके रोने से कोई वहां पे बदलाव आने वाला है? More you cry, will your wife and children come back? आप अगर रोएंगे तो क्या आपके रोने से आपकी पत्नी और बच्चे वापस आ जाएंगे? No. नहीं। That means we have to do something more than sitting and crying. लेकिन बैठ करके रोने के बजाय हमें और कुछ करने की जरूरत है। So now this is how what we have to do. और अब हमें ये करने की जरूरत है जो मैं बताने वाला हूं। You cried enough. आप बहुत रो चुके हैं, There's no power left in you. अब आपके अंदर कोई भी सामर्थ्य नहीं बची है। Now the message is stop crying. अब जो समाचार वो है कि रुक जाओ, We have to start to do something. अब हमें कुछ करने की जरूरत है। What happened? अब क्या हुआ? David was the leader. और जो दाऊद है वो वहां पे एक लीडर के रूप में उभरा है Everybody is angry and upset. और सब लोग बहुत उदास हैं और गुस्से में हैं। But the only problem is they're all getting angry with David. लेकिन बस एक समस्या का कारण है, वो सब दाऊद के ऊपर नाराज या चिल्ला रहे हैं या गुस्से में हैं। But David was with them. जब दाऊद तो उनके साथ ही था, He was not in Ziklag. वो सिकलांग में नहीं था Then you can say, I wanted to kill you. और कि मैं तुम्हें मारना चाहता हूं। No. नहीं, David was with them. दाऊद तो उनके साथ ही था And they want to stone him. और वो उनको पत्थर से मारना चाहते थे। Everybody listen to me. बहुत ध्यान से सुनिए आप लोग। Do you want to be a leader? क्या आप एक लीडर बन के उभरना चाहते हैं? Everybody wants to be a leader. हम सब लोग एक बहुत बड़े लीडर बनना चाहते हैं Everybody wants to be somebody. और हर एक जन बहुत कुछ ना कुछ अपने आप में बनना चाहता But है। the problem is, लेकिन समस्या ये है, time will come when things go wrong that everybody will come after you as a leader. लेकिन एक ऐसा समय आएगा जब समय के साथ साथ कुछ लोग आपके सामने खुद उभर के आएंगे एक लीडर के रूप में। Your team will turn against you. और जब आपकी जो खुद की जो टीम है वो आपके विरुद्ध हो They जाएगी will blame the leader because of the things went wrong. और आपके वजह से या चीजें बिगड़ गई, आपकी वजह से वो आपको दोष लगाएंगे। So what are you going to do? आप क्या करेंगे उस Look समय? at what David did. और आपको करना है जो दाऊद ने किया। He cried दाऊद रोया with everyone सबके साथ, and everybody was getting angry with him. सब लोग उसके ऊपर गुस्सा कर रहे थे, He's not fighting back. लेकिन वो वापस प्रहार नहीं कर रहा है। This is what he did. उसने ये किया। Number 2, दूसरी बात, we read in verse 6, the हाँ। last part of it. और हम उसका जो आखिरी का जो भाग है वो हम 6ठी आयत में पढ़ते हैं। David strengthened himself in the Lord God. और दाऊद बड़े संकट, क्योंकि वो अपने आप में
परमेश्वर में अपने आप को स्मरण करके हियाव देता है। Amen. Did you find that? यस, Huh? Last part. yes, okay? last part. David strengthened himself. परंतु दाऊद ने अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण करके हियाव बांधा। In the middle of his sadness and sorrow. और इन सब दुखी बातों के बावजूद भी, In the middle of our calamity. और ऐसी परेशानियों के बावजूद भी, In the middle of the coronavirus. और ये कोरोना वायरस के बीच In में, the middle of all the bad news around और us. ये सब जो खराब जो समाचार आपको सुनने में आ रहे हैं, Strengthen yourself. अपने आप में हियाव बांधिए। That's what I should do. और ऐसा हमें करना है या मुझे करना David है। strengthened himself in the Lord. परमेश्वर में दाऊद ने हियाव बांध लिया। Number 3, तीसरी बात, you read like this. वो आप ऐसा पढ़ेंगे, He called the priest और उन्होंने महायाजक को बुलाया, and he said, bring me the ephod to me in verse 7. और 7वीं आयत में कहता है, एपोद को मेरे पास ला, Bring it to me. उसको मेरे पास ला। What do you do with the ephod? और एपोद के साथ आप क्या करोगे? Ephod is a piece of cloth that you put on your head and pray. और एपोद एक तरह का वस्त्र है जिसको आप अपने सर के ऊपर डालोगे और प्रार्थना करोगे, And you ask the Lord what to do. और परमेश्वर से आप पूछोगे कि आपको क्या करना है। That is number 3. और ये तीसरी बात है, David inquired to the Lord saying, God, what should I do? और जो दाऊद है वो इस तरह से कपड़े पहन करके परमेश्वर से पूछता है, कहता है, परमेश्वर मैं क्या करूं? Lord, should I go after the enemy? क्या परमेश्वर मैं अपने शत्रुओं के पीछे जाऊं? And in verse 8 we read like this. और 8वीं आयत में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, God spoke to him. तब यहोवा ने उससे कहा, Hallelujah. हालेलुया। When you call up to God, क्या जब आप यहोवा को बुलाओगे, when you pour your heart up to the Lord, जब आप अपना पूरा हृदय उसके सामने उंडेल दोगे, well, your God will not shut his ears. परमेश्वर अपने कान को बंद नहीं करेगा। God will listen to your prayer. परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनेगा। God will answer your prayer. परमेश्वर आपकी प्रार्थना का उत्तर देगा। God will give you an answer. परमेश्वर आपकी प्रार्थना का उत्तर देगा। God said, परमेश्वर ने कहा, okay, ठीक है, go after them. जाओ अपने शत्रुओं के पीछे And भागो, I will give them in your hand. मैं उन सबको तुम्हारे हाथ में कर दूंगा, You will overtake them. और उनको आप पछाड़ दोगे, And you will, without fail, you will recover everything back. और बिना किसी परेशानी की वजह से जो आपने खोया है वो सब आपको मिल You जाएगा, will get back everything. आपको सब कुछ मिल जाएगा वापस। So, now the question is, where should I go? तो अब जो प्रश्न उठता है, अब मुझे कहाँ जाना चाहिए? Where are the enemies? और मेरे जो शत्रु है वो कहाँ हैं? Should I go this way? क्या मुझे इस तरफ जाना Should I चाहिए? go that way? क्या मुझे इस तरफ जाना Should चाहिए? I go backwards? क्या मुझे पीछे जाना चाहिए? How should I do it? मुझे कैसा करना चाहिए? Don't worry, my dear friends. मेरे प्रिय मित्रों, आपको डरने की जरूरत When नहीं the है। Lord is asking you to go, all you need to do is go. परमेश्वर कहता है कि जाओ, सिर्फ आपको जाने की जरूरत है। The Bible says like this. वचन इस प्रकार कहता है, Commit your ways unto the Lord, और अपने जो रास्ते हैं वो परमेश्वर के हाथों में सौंप दो, and He will direct your path. तब वो आपके रास्तों की अगुवाई करेगा। Hallelujah. Hallelujah. When God speaks to us, परमेश्वर जब हमसे बातचीत करता है, when God asks you to go, जब परमेश्वर हमसे कहता है जाने के you लिए, don't need to worry about how am I going to go? आपको ये सोचने की जरूरत नहीं है कि हम कैसे जाएंगे, Where am I going to go? मुझे कैसे कहाँ पे जाने की How I जरूरत will है, go? मैं कैसे जाऊंगा। Where did they go? Should I go to the right, left, or back? What should I do? आप ऐसा पूछेंगे कि मुझे यहाँ पे जाना है या उल्टे हाथ में जाना है, आगे जाना है, पीछे जाना है, कहाँ जाना है? Oh, the Bible says, commit your ways unto the Lord and He will direct your path. और वचन कहता है कि आप अपने रास्तों को परमेश्वर के हाथ में सौंप दो और वो आपकी अगुवाई करेगा। Go forward. आगे जाइए। God will say, turn right. परमेश्वर कहेगा आप सीधे जाइए। Then God will say, go turn left. परमेश्वर आपसे कहेगा कि उल्टे हाथ में मुड़ जाइए, Keep going. बढ़ते रहिए, And God will direct your path. परमेश्वर आपकी अगुवाई करेगा। Amen. Amen. That's what they saw. They saw a young Egyptian boy lying there almost dying. उन्हें वहीं पे ऐसा देखा कि एक नन्ना मुन्ना बालक है जो इजिप्शियन का, वो वहां पे पड़ा हुआ है, And he was sick, so they left him behind. And the Amalekites, they went. और वो बीमार पड़ गया था, इसलिए वहां पे छोड़ गए, और अमलेकाइट लोग हैं वो आगे बढ़ गए। So David gave some food to him. और दाऊद ने उसे कुछ खाने के लिए दिया, And he revived. और वो वापस से हिम्मत जुटा And he पाया। asked him who he was. तो दाऊद ने उससे पूछा, आप कौन हो? And he told them he is a part of the Amalekite army. तो उस बच्चे ने इस प्रकार उत्तर दिया, वो अमेलेकाइट आर्मी का एक हिस्सा है। Amen. And he told them how they went and burned Siklag. और तब उसने ये बताया दाऊद को कि वो कैसे सिकलाग में गए और सिकलाग की जो शहर है उसको कैसे नाश किया। So they were going to go forward, but in between, that 200 men with David,
they were so weary and tired, they wanted to stay back. और जाते समय दाऊद की जो सेना में 200 लोग कुछ इस तरह से कहने लगे कि वो अपने आप में बहुत कमजोर हैं, उनके अंदर हियाव नहीं है, तो वो वापस जाना चाहते हैं। You know, so no, they left them behind. और वो उनको छोड़ के पीछे छोड़कर चले And गए। David went with 400 men. और दाऊद 400 लोगों के साथ आगे बढ़ गया। And the young boy showed them the way. और जो नन्ना मुन्ना सा बालक था, उन्होंने उनको आगे की तरफ रास्ता And they दिखाया। went and got there and they overpowered the Amalekite, they defeated them. और अमलेकाइट के पीछे की जो सेना है उनके साथ उन्होंने लड़ाई किया, उनको पछाड़ दिया और युद्ध में उन्होंने जीत प्राप्त करी। Just like God said. और जैसे परमेश्वर ने उनको कहा था, They recovered everybody, all the women, children, everyone. उन्होंने सब कुछ वापस प्राप्त कर लिया, औरत को, बच्चों को, सारी चीजों को। And they got all the spoil of the things that belonged to the Amalekite. They got all those things. और जो अमलेकाइट की जो संपत्ति थी वो भी वो लेकर के आ गए। And they were coming back. और जब वो वापस आ रहे थे, And the Bible says और वचन कहता है, there were some worthless and wicked men who were among the people of David. और ऐसा कहा जाता है कि उन 400 लोगों के अंदर में कुछ ऐसे दुष्ट या पापी या अजीब और गरीब से लोग थे जो उस सेना में थे। Why the Bible is calling them worthless men? और वचन क्यों उन्हें किसी काम के नहीं है ऐसे क्यों कह रही है? Because they were selfish people. क्योंकि वो अपने आप में सिर्फ अपने बारे में चिंता करने वाले थे। And they said, we don't want to give anything to those 200 people. और वो इस प्रकार कहने लगे कि हम उन 200 लोगों को नहीं देना चाहते हैं जो हमें छोड़ के भाग Because गए they थे, did not come and fight with us. क्योंकि वो हमारे साथ नहीं आए युद्ध करने के लिए। But David said, लेकिन दाऊद ने इस प्रकार from today कहा, onwards I'm making a law. लेकिन आज मैं तुम्हारे सामने एक जो वाचा को बांधने जा रहा हूं। When you have the spoil of the enemy, और जब आपके हाथ में ये जो आपके जो दुश्मन है उनका जो कुछ हिस्सा बचा कुचा है, you should divide that exactly for the people who went to war and also the people who stayed back home. आपको जो गए हैं और जो नहीं गए हैं उन दोनों के बीच में आपको समान रीति में सारी चीजों को बांटने की जरूरत है। They divided the spoil among all those people. और वो जो चीजें लेकर के आए थे युद्ध से, वो सबको समान रूप में बांट दिया। And they came back. और वो वापस आए। Amen. आमीन। They came back to Siklag. और वो सिकलाग में वापस आते हैं। We are coming to the end of the story. हम कहानी के अंत में आ रहे हैं। There's one question still remains. और एक प्रश्न है जिसका अभी भी उत्तर मिलना बाकी है। Because when they came, there's no place to stay. जब वो वापस आए तो उनको ठहरने के लिए या रहने के लिए कोई जगह नहीं थी। The whole village was burned down. जब वो वापस आए तो सिकलाग जो शहर था वो तो जल चुका था। And no houses are there to stay. एक घर भी नहीं बचा था रहने के लायक। There's nothing. Everything just a burnt, just a heap of burnt. और कुछ भी नहीं बचा था, बस सिर्फ जलती हुई राख दिखाई दे रही थी। So there's always a question remains. और हमेशा एक प्रश्न हमारे सामने उठ के आता है, God, परमेश्वर, you helped us to bring our people back. आपने हमें मदद तो करी कि हम अपने लोगों को वापस छुड़ा करके You लेके आए। defeated the enemy for us. आपने हमारे जो दुश्मन है उनको भी हरा दिया। You gave all the spoil for us. हमको सब कुछ उनके सामान को भी आपने हमें दे दिया। But there is still one question. लेकिन अभी भी एक प्रश्न है The परमेश्वर, question is this. और प्रश्न जो है, Why did you allow Siklag to be burnt? क्यों आपने ऐसा होने दिया कि जो हमारा शहर है सिकलाग वो जल के राख हो जाए? There's nothing, no place for us to stay. अब हमारे पास रहने के लिए कुछ तो है बचा नहीं। Lord, why Siklag is burned? क्यों परमेश्वर आपने सिकलाग को जलने के लिए दे दिया? Amen. आमीन। You would like to know the answer. क्या आपको प्रश्न का उत्तर जानने के आप इच्छुक हैं? And that is my last point of my message. और मेरे जो प्रचार का आखिरी बिंदु यही है, Because when things go wrong, we all ask this question. जब हमारे जीवन में ऐसी कुछ परिस्थिति आती है हम सब प्रश्न करते हैं, Because we only know what happens at that time. क्योंकि हमें सिर्फ उतना ही पता होता है जो उस क्षण में हुआ है। But we don't know the future. हमें हमारा जो भविष्य है उसके बारे में नहीं पता We है। don't know God's plan. हमें परमेश्वर की योजना के बारे में नहीं पता है। Hallelujah. हालेलुया। What is God's plan? परमेश्वर की योजना क्या है? This happened in chapter 30 of 1 Samuel. और ये जो बात हुई है वो पहला शामिल उसके 30वें अध्याय में हुई है। Then you come to chapter 31. जब आप 31वें अध्याय में आते हैं, There the battle was so hard. और जो युद्ध था वो बहुत ही कठिन था। And in
in that battle they killed Saul and his 3 sons. और उस युद्ध में उन्होंने जो साउल है और उसके 3 बेटों को मार They गिराया cut the head of Saul. और साउल को उस साउल का जो सर है उसके धड़ से अलग कर दिया They hanged the dead bodies of Saul and his sons on the wall. और उन्होंने ऐसा किया जो साउल और उसके बच्चों के शरीर को उन्होंने दीवारों पे टंगा दिया That is how that book finishes. और इस प्रकार से ये जो पुस्तक है खत्म होती है The saddest ending of the first anointed king of Israel. और सबसे दुखद अंत एक इस्राएल के पहले एक राजा जिसका परमेश्वर ने अभिषेक किया And now we come to the second Samuel. लेकिन उसके बाद अब हम दूसरे सामुएल में आते हैं So how does that book begin? वो उस पुस्तक का कैसे आरंभ होता The है book starts like this. और उस पुस्तक इस प्रकार शुरू होती है Saul was dead और साउल मर चुका है and the people of Israel, और जो इस्राएल के लोग हैं they started to search for David to bring him to be the king. और अब वो दाऊद के पीछे या उसकी मांग कर रहे हैं कि वो उनके पूरे राज्य का साम्राज्य का राजा बन जाए Amen. आमीन Right, David is going to become the king. और जो दाऊद है वो राजा बनने वाला है So what is my answer? मेरा उत्तर क्या है Why Siklag is burning? क्यों सिकलांग जो जल चुका है Why your Siklag is burning? क्यों आपका सिकलांग जल चुका Why है are you so worried about the Siklag burning in your life? जो सिकलांग आपके जीवन में जल चुका है उसके लिए आप क्यों चिंतित हैं What is my answer? मेरा उत्तर क्या है The Siklag is burning because your throne is waiting. क्योंकि सिकलांग इसलिए जल रहा है क्योंकि आपका राज्य सिंहासन आपका वेट कर रहा है इंतजार कर रहा है. इंतजार कर रहा है Hallelujah. हालेलुया Siklag is burning सिकलांग तो जल रहा है because your throne is waiting. क्योंकि आपका जो राज्य सिंहासन है वो आपका इंतजार कर रहा Now God is saying, है लेकिन अब परमेश्वर कह रहा I है allowed the Siklag to be burnt मैंने होने दिया कि सिकलांग जल जाए because you don't belong to Siklag anymore. क्योंकि आप सिकलांग के हिस्से नहीं हो You don't belong to the land of Philistine. क्योंकि आप फिलिस्तियों के इस जमीन में रहने वाले लोग नहीं हो We are going home. हम अपने घर जाएंगे People are waiting for you. हमारे लोग हमारी प्रतीक्षा कर रहे Your हैं throne is waiting for हमारा you. जो सिंहासन है वो हमारी प्रतीक्षा कर रहा Your है crown is waiting for हमारा you. मुकुट हमारी प्रतीक्षा कर रहा है That is my plan, says the Lord. वो है परमेश्वर की योजना Amen. आमीन Your throne is waiting. आपका जो सिंहासन है वो इंतजार कर रहा Don't है worry about Siklag. सिकलांग के लिए चिंता मत That करिए was only for a little transit, just waiting period. वो तो सिर्फ एक आपका इंतजार का समय था Amen. आमीन You belong to the people of Israel. आप परमेश्वर के इस्राएल के लोगों के भाग हैं You are the king. आप राजा हैं Amen. आमीन I want you to hear me as I pray. और मैं चाहूंगा जैसे मैं प्रार्थना करता हूँ आप इस प्रकार सुने The Lord has got a throne waiting for you. परमेश्वर का राज्य सिंहासन आपकी प्रतीक्षा कर रहा है God, the Lord will bring you through all these hardships and problems. Finally, we will end up to it. हो सकता है हमारे रास्ते को परमेश्वर टेढ़े मेढ़े करके हमें ले करके आए लेकिन अंत में हमारे लिए सिंहासन वेट कर रहा है Are you happy? क्या आप बहुत खुश हैं Let the Siklag burn. होने दीजिए जो सिकलांग है जलने दीजिए It's only for the present time. वो सिर्फ हमारे अभी के समय के लिए But है you have a great future. लेकिन आपका बहुत बड़ा बहुत ही अच्छा भविष्य Because है God has got a great plan for your life. क्योंकि परमेश्वर के लिए आपकी बहुत बड़ी योजना है Amen. आमीन Let us love the Lord with all our heart. आइए हम अपने पूरे दिल से परमेश्वर को प्रेम Let करें us believe God for that great miracle future in our life. आइए हम परमेश्वर पे एक बहुत बड़े चमत्कार में होने वाले भविष्य की प्रतीक्षा करें Pray with me. आइए मेरे साथ प्रार्थना कीजिए Heavenly Father, हे स्वर के पिता we praise परमेश्वर you and we thank you, Lord, for today. हम आपका नाम ऊंचा करते हैं और धन्यवाद देते हैं What an amazing story. और कितनी सुहावनी कहानी है How you looked after your servant David, Lord. कैसे आपने अपने जो दास है दाऊद की रखवाली करी Even in the middle of problems, you are always there. और परेशानी के बावजूद भी तू उसके साथ बना रहा We thank you for that, Lord. मैं उसके लिए धन्यवाद देता हूँ Every one of us who have heard this message, you are looking for the future. परमेश्वर हम जिस किसी ने भी यह संदेश सुना है हम सब अपने भविष्य की प्रतीक्षा कर रहे Because हैं we believe you got something wonderful for us in our life. क्योंकि हम ये मानते हैं परमेश्वर आपने हमारे भविष्य के लिए कुछ ना कुछ अच्छा रख छोड़ा है I pray your blessing will be upon every person of Capital Christian और मैं Center. आशा करता हूं कि आपकी जो आशीष है कैपिटल क्रिश्चियन सेंटर के हर एक मेम्बरान पर बनी रहेगी Lord, I pray for our dear brother Neeraj, Lord. और परमेश्वर में हमारे प्रिय भाई नीरज के लिए प्रार्थना There करते is a हैं future for him. उसके
लिए एक भविष्य आपने तैयार We कर believe रखा in the है healing power of Jesus और Christ. आपके एक चंगा करने वाली उस आत्मा या सामर्थ पे हम विश्वास करते Please, हैं। everybody pray with me, please. मेरे साथ सारे लोग एकजुट होकर के प्रार्थना कीजिए। Let the Lord touch our brother. परमेश्वर हमारे भाई को छू लीजिए। I command the cancer to leave his body. परमेश्वर मैं उस जो कैंसर है, कर्क का रोग है, उसको मैं डांट के उसके शरीर से Every बाहर कर देता sickness हूँ। go out of his उसके body. शरीर से सारी जो बातें हैं निकल के छोड़ के I भाग command जाए। a total healing in his life. मैं आज्ञा देता हूं कि आपकी संपूर्ण चंगाई उसके जीवन में बस जाए। I declare an amazing future for him and his family. उसके परिवार के लिए और उसके जीवन के लिए एक बहुत सुहावना भविष्य की मैं घोषणा करता हूं। And I pray the same for everyone in our church, Lord. और उसके साथ साथ हमारी कलीसिया में सब मेंबरान के लिए भी। I pray for Birj Mohan. और मैं ब्रिज मोहन के लिए प्रार्थना करता I हूं। curse the attack of the enemy. और वो जो शैतान की तरफ से वो जो अटैक हुआ है उसको मैं यीशु मसीह के नाम से डांट देता हूं। Demon, leave his body in और जो Jesus' दुष्ट name. आत्मा है उसके प्रभु यीशु मसीह के नाम से निकल जाओ। Father, protect everyone, Lord. प्रभु यीशु मसीह हम सबको सुरक्षित कीजिए। We give you the praise and glory. हम आपको हमारी पूरी प्रशंसा और आराधना देते हैं। In Jesus' name we pray. यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। Amen. आमीन। The grace of our Lord Jesus Christ, the love of the Father God, and the fellowship of the Holy Spirit be with all of us from this time forevermore. Amen. आमीन। God bless you, my dear friends. Continue to love God, spend time in prayer and meditating God's word. परमेश्वर के मेरे प्रिय मित्रों, परमेश्वर में बने रहिए, उसके वचन पे मनन करिए और परमेश्वर आपको बहुत आयत से आशीष दे। I want you to know that I love you very much मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं आपसे बहुत प्रेम करता हूँ and God will take care of you. और परमेश्वर आपकी चिंता करेगा और आपको संभाल के I रखेगा। miss you all the time. मैं आपको हर समय याद करता हूँ। God be with you. परमेश्वर आपके साथ रहे।